کبھی سوچا ہے جب ایک بادشاہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھنے لگے تو اس کا زوال کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے بادشاہ کی جو تخت پر بیٹھا تھا مگر حقیقت سے اندھا ہو چکا تھا۔ صدیوں پہلے زریاب نام کی ایک سلطنت ہوا کرتی تھی۔ اس سلطنت کا بادشاہ تھا بادشاہ افسر شاہ۔ اس کے پاس سب کچھ تھا: تاج، تخت، فوج، خزانہ۔ لوگ کہتے تھے کہ زریاب کا خزانہ کبھی خالی نہیں ہوتا، اور بادشاہ خود کہتا تھا، میرا نصیب میرا اپنا ہے۔ صبح دربار سجتا، سونے کے قلم، ریشمی پردے اور زمین تک جھکے ہوئے وزیر۔ جو بات بادشاہ کے منہ سے نکلتی وہ قانون بن جاتی۔ مگر وقت کے ساتھ بادشاہ کے دل میں ایک چیز بڑھتی چلی گئی: غرور۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وہ کہتا، اگر میں نہ ہوتا تو یہ لوگ بھوکے مر جاتے۔ غریب اس کے لیے صرف نمبر تھے اور انصاف صرف ایک لفظ۔ دربار میں اگر کوئی سچ بول دیتا تو اسے خاموش کر دیا جاتا۔ بادشاہ افسر شاہ صرف اپنی آواز سننا چاہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ پیسہ ہر چیز خرید سکتا ہے، وفاداری بھی، سچ بھی اور دعا بھی۔ اس نے خزانے کے دروازے کھول دیے، سونا بہنے لگا، محفلیں سجنے لگیں۔ شہر میں روشنی تھی مگر دل اندھیرے ہو رہے تھے۔ بادشاہ نے ٹیکس بڑھا دیا، غریب اور غریب ہوتے گئے، مگر بادشاہ کو فرق نہیں پڑا۔ وہ کہتا، سلطنت قربانی مانگتی ہے۔ اس وقت اسے یہ نہیں پتا تھا کہ سب سے پہلی قربانی انسانیت ہوتی ہے۔ ایک دن شہر کے باہر ایک بوڑھا فقیر آیا۔ اس نے دربار کے باہر کہا، بادشاہ سے کہہ دو کہ غرور کا بوجھ تخت بھی نہیں اٹھاتا۔ یہ بات بادشاہ تک پہنچی۔ بادشاہ ہنس پڑا۔ اس نے کہا، فقیروں کی باتیں فقیر ہی سمجھیں۔ اس دن بادشاہ نے صرف فقیر کو نہیں، اپنی قسمت کو بھی نظر انداز کیا۔ اسے کیا پتا تھا کہ یہی غرور، یہی پیسہ اور یہی تخت ایک دن اسے سب سے زیادہ مہنگا پڑے گا۔ کیونکہ جب اللہ دیتا ہے تو امتحان لیتا ہے، اور جب غرور حد سے بڑھ جائے تو زوال لکھ دیا جاتا ہے۔ یہاں سے بادشاہ افسر شاہ کا اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ جب پیسہ آنکھوں پر پردہ ڈال دے تو بادشاہ کو بھی اپنا انجام نظر نہیں آتا۔ بادشاہ افسر شاہ اب صرف طاقت کا مالک نہیں تھا، وہ پیسے کا غلام بن چکا تھا۔ اس کا خزانہ روز بھرتا جا رہا تھا، سونا، چاندی، جواہرات، مگر اس کا دل روز خالی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے حکم دیا کہ ہر چیز پر ٹیکس بڑھا دیا جائے۔ روٹی مہنگی ہو گئی، پانی مہنگا ہو گیا، سانس لینا بھی مشکل ہو گیا۔ غریب شہر کے کونوں میں سمٹ گئے، امیر اور زیادہ امیر ہو گئے۔ بادشاہ کے دربار میں صرف تعریف سنائی دیتی تھی۔ وزیر کہتے، آپ جیسا بادشاہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے۔ بادشاہ مسکرا دیتا، اسے یہ لفظ پسند تھے۔ سچ بولنے والے یا تو چپ ہو گئے یا چپ کرا دیے گئے۔ ایک دن ایک نوجوان دربار میں آیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر آنکھوں میں سچ تھا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، شہر میں بھوک بڑھ رہی ہے۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے کہا، بھوک ان کی قسمت ہے، سلطنت چلانی ہوتی ہے۔ نوجوان نے کچھ کہنا چاہا مگر سپاہیوں نے اسے باہر پھینک دیا۔ اس دن انصاف نے آنکھیں بند کر لیں۔ بادشاہ نے نئے محل بنوائے، محفلیں سجنے لگیں، رات بھر میوزک، شراب اور سونے کے پیالے۔ بادشاہ کے قریب لوگ بڑھتے گئے مگر صرف وہ جو فائدہ دے سکتے تھے۔ اس نے پیسے کو اپنا سب سے بڑا ہتھیار بنا لیا۔ وفاداری خریدی جاتی تھی، خاموشی خریدی جاتی تھی، ضمیر بھی خریدا جاتا تھا۔ بادشاہ سمجھتا تھا کہ سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اسے کیا پتا تھا کہ پیسہ جب سر پر چڑھ جائے تو سب سے پہلے اپنا ہی گھر چلا دیتا ہے۔ ایک رات بادشاہ اپنے کمرے میں اکیلا تھا۔ سونے کے صندوق کھلے تھے، جواہرات چمک رہے تھے۔ بادشاہ نے خود سے کہا، میں چاہوں تو دنیا جھکا دوں۔ اس پل اسے اپنی کمزوری کا اندازہ نہیں تھا۔ اس پل اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ جو پیسہ وہ جوڑ رہا ہے وہی پیسہ اسے ڈبانے والا ہے۔ کیونکہ کچھ لوگ دربار میں صرف مسکرا نہیں رہے تھے،
कुछ लोग हिसाब लगा रहे थे। वजीरों के दिल बदल चुके थे, सिपाहियों की वफादारी बिक रही थी और बादशाह सिर्फ सोने की चमक देख रहा था। ज़वाल खामोशी से करीब आ रहा था और बादशाह अभी तक घुरूर की नींद सो रहा था। याद रखो, जब बादशाह पैसे पर भरोसा करे और लोगों पर नहीं, तो तख्त सिर्फ वक्त का मेहमान होता है। ज़वाल जब आता है तो पहले दुश्मन नहीं, अपने लोग बदलते हैं। बादशाह अफसर शाह अब हर फैसला सिर्फ पैसे से तोलता था। उसे लगता था कि सोना हो तो हर मसला हल हो जाता है। दरबार में वजीरों की मुस्कुराहटें बरकरार थीं, मगर आंखों में वफादारी कम हो चुकी थी। एक वजीर ने दूसरे से कहा, बादशाह अंधा हो चुका है। दूसरा मुस्कुराया, बस थोड़ा सब्र, वक्त हमारा होगा। बादशाह को कुछ भी सुनाई नहीं देता था। उसने खजाने का इख्तियार चंद लोगों को दे दिया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। खजाने से पैसा चुपचाप निकलता रहा। बादशाह को लगता रहा सब ठीक है। शहर के बाहर दुश्मन ताकत जमा कर रहा था। अंदर वजीर अपना हिस्सा मांग रहे थे। सिपाहियों को वक्त पर तनख्वाह नहीं मिली। फौज का हौसला टूटने लगा। एक सिपाही ने कहा, हम जान क्यों दें जब बादशाह हमें भूल चुका है। बादशाह के महल में रक्स और महफिल जारी रही। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाहर लोग भूख से बिलबिलाते रहे। एक रात एक राजदार वजीर चुपके से महल से निकला। उसके हाथ में शहर के नक्शे थे। वो दुश्मन के कैंप में पहुंचा। उसने कहा, दरवाजे किस रात खुले होंगे मैं बता सकता हूं। उस रात सल्तनत बिक चुकी थी। बादशाह को अभी तक खबर नहीं थी। सुबह दरबार लगा। बादशाह ने कहा, खजाने का हिसाब लाओ। वजीरों ने सर झुका लिया। हिसाब अधूरा था। बादशाह गुस्सा हो गया, मगर उस गुस्से में भी गुरूर था। उसने कहा, जो चुरा रहा है वो खुद पकड़ा जाएगा। उसे ये नहीं पता था कि चोर उसके बिल्कुल करीब खड़े थे। रात होने लगी। शहर के दरवाजे पर पहरा कम हो गया। सिपाही सो गए। कुछ ने जानबूझकर आंखें बंद की। अंधेरे में ज़वाल ने कदम रख दिया और बादशाह अभी तक महफिल में मसरूफ था। जब तख्त के करीब सिर्फ फायदा देखने वाले लोग हों तो ज़वाल को दरवाजे खोलने की जरूरत नहीं होती। जिस रात तख्त गिरता है उस रात बादशाह को कोई खबर पहले नहीं मिलती। रात गहरी हो चुकी थी। महल की रोशनी अभी तक जली हुई थी। बादशाह अफसरशाह महफिल में बैठा था। हंसी, म्यूजिक और सोने के जाम। दरबार के बाहर अंधेरा गहरा होता जा रहा था। शहर के दरवाजे आधे खुले थे। पहरा कम था। कुछ सिपाही सो रहे थे, कुछ ने जानबूझकर अपनी जगह छोड़ दी। दूर अंधेरे में दुश्मन की फौज करीब आ चुकी थी। उनके हाथ में तलवारें थीं और दिल में खजाना। महल के अंदर किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर अचानक शहर के एक कोने से शोर उठा। तलवारों की झंकार, चीखों की आवाज, मगर दरबार में म्यूजिक तेज कर दिया गया। बादशाह ने कहा, शोर को अंदाज करो। वो ये नहीं जानता था कि ये शोर उसके तख्त का आखिरी गीत है। कुछ देर बाद एक सिपाही भागता हुआ आया। उसका चेहरा जख्मी था, आंखों में खौफ था। बादशाह सलामत, उसने कांपते हुए कहा। दुश्मन शहर में घुस चुका है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह खड़ा हो गया। उसे पहली बार अपनी सीने में डर महसूस हुआ। उसने हुक्म दिया, फौज को बुलाया जाए, मगर कोई जवाब नहीं आया। सिपाही नहीं थे, वजीर गायब थे। महल के रास्ते एक के बाद एक बंद होते गए। दुश्मन करीब आ रहा था। बादशाह ने खजाने की तरफ दौड़ा। संदूक खोले। सोना था, मगर अब सोना किसी काम का नहीं था। उसने अपना ताज उठाया, उसे पहना और फिर खुद ही उतार दिया, क्योंकि अब कोई झुकने वाला नहीं था। एक वफादार सिपाही अंदर आया। बादशाह, उसने कहा, भाग जाइए। बादशाह अफसरशाह पहली बार भागने वाला था। गलियों में आग लग चुकी थी। लोग इधर उधर भाग रहे थे।
बादशाह ने पीछे मुड़कर देखा। उसका महल जल रहा था, उसका तख्त टूट चुका था, उसकी सल्तनत रात के अंधेरे में खाक हो चुकी थी और वो सिर्फ एक भागता हुआ आदमी था। याद रखो, जब गुरूर की बुनियाद पर सल्तनत खड़ी हो तो उसका गिरना सिर्फ वक्त का इंतजार होता है। जो कल तक हुक्म देता था, आज उसके पास मांगने के भी अल्फाज नहीं होते। बादशाह अफसर शाह शहर से बाहर निकल चुका था। न ताज था, न लिबास ठीक था, न पहचान बाकी थी, सिर्फ एक थका हुआ जिस्म और बोझल दिल। रात का अंधेरा उसके साथ साथ चल रहा था। हर कदम पर उसे लगता कोई पीछे आ रहा है। वो रुकता, पीछे देखता, कोई नहीं होता, सिर्फ खौफ। पहली सुबह जब सूरज निकला तो उसे भूख महसूस हुई, ऐसी भूख जो कभी महल में महसूस नहीं हुई थी। उसके पास न सोना था न सिक्का। वो शहर के बाहर एक कच्चे रास्ते पर बैठ गया। लोग गुजरते रहे, कोई न पहचाना। एक औरत ने देखा और मुंह फेर लिया। एक बच्चे ने पूछा, ये कौन है? उसकी मां ने कहा, कोई भिखारी। वो लफ्ज उसके सीने में चुभ गया, भिखारी। उस रात वो खुले आसमान के नीचे सोया। जमीन सख्त थी, हवा ठंडी थी, आंखें बंद की, नींद नहीं आई। उसे महल याद आया, मेज, खाना, और फिर उन चेहरों का ख्याल आया जिन पर उसने जुल्म किया था। पहली बार उसके दिल ने पूछा, क्या तू सही था? सुबह हुई। उसने शहर की तरफ वापस चलना चाहा, मगर पैरों में ताकत नहीं थी। भूख बढ़ चुकी थी। उसने एक दुकान के बाहर काम मांगा। दुकानदार ने देखा और कहा, यहां काम नहीं। दूसरी दुकान, वही जवाब। तीसरी दुकान पर उसे धक्का मिला, दूर हो जाओ। उस वक्त उसे महसूस हुआ कि इज्जत क्या होती है। जो चीज उसके पास कभी थी, आज बिल्कुल नहीं थी। शाम को एक मजदूर ने उसे रोटी का टुकड़ा दिया। वो टुकड़ा उसने आहिस्ता खाया। आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो आंसू भूख के नहीं थे, वो आंसू गुरूर के टूटने के थे। उस रात उसने आसमान की तरफ देखा और पहली बार कहा, अगर मैं गलत था तो मुझे सुधार दे। ये लफ्ज बादशाह के नहीं थे, ये लफ्ज एक टूटे हुए इंसान के थे। जिस दिन इंसान अपनी गलती मान ले, उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू होती है। जब जिंदगी झुकना सिखा दे तो सब्र ही इंसान का असल ताज बन जाता है। बादशाह अफसर शाह अब बादशाह नहीं रहा था। वो रोज सुबह शहर के किनारे काम की तलाश में निकलता। कभी पत्थर उठाता, कभी मिट्टी ढोता, कभी बोझ ढोने वालों के साथ खड़ा होता। हाथ छिल गए, पीठ झुक गई, मगर जबान पर शिकवा नहीं आया। लोग उसे हुक्म देते, ये उठा, वहां ले जा। वो चुपचाप करता। हर हुक्म उसके लिए एक सबक था। शाम को जो थोड़ी सी रोटी मिलती, वो किसी खजाने से कम नहीं लगती। वो हर निवाला रुक रुक कर खाता, जैसे रोटी नहीं रहमत हो। कई रातें भूख में गुजरी, कई सुबहें कमजोरी के साथ आईं, मगर वो फिर भी उठता, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि मेहनत क्या होती है। एक दिन एक मजदूर ने पूछा, तुम इतना चुप क्यों रहते हो? अफसर शाह ने कहा, क्योंकि बोलने का हक मैं पहले ही खो चुका हूं। ये अल्फाज मजदूर के दिल को लग गए। लोग धीरे धीरे उसे पहचानने लगे। ये आदमी काम से भागता नहीं, ये जो मिले उसे कबूल करता है। उसकी आंखों में अब गुरूर नहीं था, सिर्फ सब्र था। रात को वो खुले आसमान के नीचे दुआ करता, जो छीन लिया गया उस पर शुक्र, जो बाकी है उस पर भी शुक्र। ये दुआ बादशाह की नहीं थी, ये दुआ एक सीखने वाले इंसान की थी। वक्त गुजरता गया, दिन मुश्किल थे, मगर दिल हल्का होता गया। उसे महसूस हुआ कि गुरूर के बिना सांस लेना आसान होता है।
जो सब्र सीख जाए वो गिर कर भी हारता नहीं। कभी कभी एक छोटी सी गलती इंसान के सब्र को सबसे ज्यादा आजमा लेती है। अफसर शाह अब रोजाना मेहनत करता था। उसे शहर के बाहर एक अमीर जमींदार के पास काम मिल गया था। काम सख्त था, दिन लंबा था, मगर रोटी पक्की थी। उसका काम था माल ढोना, बोझ उठाना और रात को हिसाब संभालना। जमींदार सख्त मिजाज था। वो अक्सर कहता, गलती की गुंजाइश नहीं। अफसर शाह हर बात मान लेता। एक दिन थकान हद से बढ़ गई। रात को उसे ठीक से नींद नहीं आई। सुबह आंखें बोझल थीं। उस दिन उसे अनाज के बोरे शहर भेजने थे। उसने हिसाब लिखा, मगर गलती हो गई। 2 बोरे कम लिख दिए। अनाज चला गया, मगर गिनती पूरी नहीं थी। शाम को जमींदार ने हिसाब देखा। उसका चेहरा सख्त हो गया। ये कमी क्यों है? उसने पूछा। अफसर शाह खामोश खड़ा रहा। उसने सच बोला, मेरी गलती है। जमींदार को गुस्सा आ गया। तुम जैसों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लोग जमा हो गए। किसी ने कहा, यह बदनसीब है। किसी ने कहा, जहां जाता है नुकसान ही करता है। अफसर शाह का सर झुक गया। उसे लगा जैसे पूरी दुनिया उसे फिर से सजा दे रही हो। जमींदार ने हुक्म दिया, जब तक नुकसान पूरा नहीं होता तुम यहीं काम करोगे, बिना उजरत। ये लफ्ज तलवार बनकर उसके दिल पर लगे। बिना उजरत, बिना आजादी। उस रात वो बहुत देर तक जागता रहा। जमीन पर बैठकर आंखों से आंसू बहते रहे। उसने पूछा, क्या इम्तिहान अभी भी बाकी है? मगर फिर उसे अपनी दुआ याद आई, जो छीन लिया गया उस पर शुक्र। उसने आंसू पोंछे और दिल से कहा, मैं भागूंगा नहीं। अगली सुबह वो फिर काम पर आ गया और पहली बार उसे समझ आया कि असल सब्र यहीं से शुरू होता है। जब जिंदगी इंसान को झंझोर कर रोक लेती है, तभी पता चलता है कि वो टूटेगा या निखर जाएगा। जब इंसान मजबूर हो जाए तो उसकी असलियत सबसे ज्यादा साफ नजर आती है। अफसर शाह अब जमींदार के लिए बिना उजरत काम करता था। सुबह अंधेरे में उठता, शाम अंधेरे में लौटता, खेत साफ करता, पानी भरता, जानवरों का ख्याल रखता। हाथ जख्मी थे, पैर सूजे हुए, मगर वो फिर भी हर काम पूरा करता। जमींदार दूर खड़ा सब कुछ देखता। कभी तारीफ नहीं, कभी रहम नहीं। गांव के लोग उसे देखकर बातें करते, ये आदमी अजीब है, मार खाता है फिर भी भागता नहीं। अफसर शाह सब सुनता, मगर जवाब नहीं देता। उसे पता चल चुका था कि हर जवाब बोलना जरूरी नहीं होता। रात को वो छोटी सी झोंपड़ी में अकेला बैठता। न बिस्तर, न रोशनी, सिर्फ यादें। कभी महल याद आता, कभी ताज। मगर अब वो यादें दर्द नहीं देती थीं। वो खुद से कहता, शायद मैं इस जिंदगी के लायक नहीं था। ये पहली बार था जब उसने अपने आप को माफ किया। एक दिन जमींदार के घर मेहमान आए। वो अमीर थे, गुरूर से भरे हुए। उन्होंने अफसर शाह को देखा और हंसकर कहा, ये कौन है? जमींदार ने कहा, मेरा करिंदा। ये लफ्ज अफसर शाह के दिल पर लगा। करिंदा। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात उसने लंबी दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरी जिंदगी का ये हिस्सा सजा है तो मुझे इससे सीखने दे। अगली सुबह वो और ज्यादा मेहनत से काम करने लगा। अब उसके काम में खुलूस आ गया था। ना दिखावा, ना मजबूरी, सिर्फ जिम्मेदारी। और जमींदार ये सब देख रहा था। उसे अभी नहीं पता था कि ये खामोश मेहनत जल्दी रंग लाने वाली है। जो मजबूरी में भी ईमान न छोड़े, वक्त उसे कभी न कभी जरूर उठाता है। कभी कभी इंसान की खामोशी सबसे जोर से बोलती है। अफसर शाह अब भी चुपचाप काम करता था, न शिकवा न शोर। जमींदार रोज उसे देखता, हर दिन उसी तरह मेहनत, उसी तरह सब्र। एक दिन तेज बारिश शुरू हो गई। लोग घरों में छुप गए, मगर अफसर शाह खेत में ही रहा। पानी भर चुका था,
फसल डूब रही थी। वो नंगे पांव कीचड़ में घुसता रहा। फसल बचानी है, उसने खुद से कहा। बारिश तेज होती गई। उसका जिस्म कांप रहा था, कपड़े भीग चुके थे, मगर वो रुका नहीं। जमींदार खिड़की से ये मंजर देख रहा था। उसके दिल में कुछ हिल गया। उसने पूछा, ये आदमी अपनी जान क्यों जला रहा है? किसी ने कहा, ये काम को अपना समझता है। रात को जमींदार ने हिसाब देखा। नुकसान पूरा हो चुका था। उसने सोचा, ये आदमी भाग सकता था, मगर भागा नहीं। अगली सुबह जमींदार ने अफसर शाह को बुलाया। अफसर शाह सर झुकाकर खड़ा हो गया। जमींदार ने कहा, तुम्हारी मेहनत मेरे लिए काफी है, तुम आजाद हो। अफसर शाह सुनकर रुक गया। उसे यकीन नहीं हुआ। मैं आजाद? उसने धीरे से पूछा। जमींदार ने सर हिला दिया। उस पल अफसर शाह की आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू सुकून के थे। जमींदार ने एक और बात कही, तुम जैसे लोग कम मिलते हैं, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हें काम और हिस्सा दूंगा। ये अल्फाज नई जिंदगी का दरवाजा थे। अफसर शाह ने सर झुकाकर कहा, शुक्रिया। उसने दिल में कहा, मैं बादशाह नहीं बनूंगा, मगर ईमानदार जरूर रहूंगा। जब रहमत का दरवाजा खुलता है तो वो शोर से नहीं, खामोशी से खुलता है। जब जिंदगी दोबारा मौका दे तो सिर्फ वो ही संभाल पाता है जो पहले टूट चुका हो। अफसर शाह अब आजाद था, मगर उसके पास अभी भी कुछ नहीं था। न जमीन, न माल, न पहचान, सिर्फ इज्जत का एक नया बीज। जमींदार ने उसे छोटा सा काम दिया, अनाज की देखभाल, हिसाब किताब, रोज का रिकॉर्ड। काम छोटा था, मगर जिम्मेदारी बड़ी थी। अफसर शाह पहली सुबह ही वक्त से पहले पहुंच गया। उसने दफ्तर साफ किया, कागज सीधे किए, हर एक दाना ईमान से लिखा। जमींदार ने देखा, कुछ कहा नहीं, मगर भरोसा बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में काम बेहतर होता गया। नुकसान रुक गया, मुनाफा नजर आने लगा। गांव के लोग हैरान थे, यह आदमी काम जानता है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। अफसर शाह कभी अपनी कहानी नहीं सुनाता, वो सिर्फ काम करता। रात को वो अल्लाह का शुक्र अदा करता, जो दिया है वो काफी है। एक दिन जमींदार ने उसे बुलाया। उसके हाथ में कुछ कागज थे। मैं चाहता हूं, जमींदार ने कहा, तुम इस काम में मेरा हिस्सा बनो। ये लफ्ज सपने जैसे थे। हिस्सा, शरीकत। अफसर शाह कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, अगर हलाल हो तो कबूल है। उस दिन पहली बार उसके हाथ में अपना फैसला था। जो दोबारा उठता है वो पहले से तेज नहीं, पहले से समझदार होता है। जब दौलत वापस आने लगे तब असल इम्तिहान शुरू होता है। अफसर शाह अब सिर्फ मजदूर नहीं रहा था, वो हिस्सेदार बन चुका था। काम बढ़ गया, जिम्मेदारी बढ़ गई, और साथ ही उसका ईमान भी आजमाया जा रहा था। अनाज का कारोबार अब शहर तक पहुंच गया। लोग भरोसा करते थे, सामान बिना गिने छोड़ देते थे। अफसर शाह हर चीज लिखता, हर पैसा गिनता, ना एक जरा कम, ना एक जरा ज्यादा। मुनाफा आने लगा। पहली बार उसके हाथ में वापस पैसा आया। उसने पैसा देखा, फिर आसमान की तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, इम्तिहान फिर से है। कुछ लोग करीब आए। उन्होंने कहा, थोड़ा सा हिसाब इधर उधर कर लो, कौन देखता है? अफसर शाह ने सीधा जवाब दिया, मैं देखता हूं। ये बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी, मगर जमींदार ने ये बात सुन ली। उस दिन उसे यकीन हो गया कि उसने सही आदमी चुना है। कुछ ही अरसे में कारोबार और बढ़ गया। नया गोदाम, नए सौदे, नए रास्ते। अफसर शाह का नाम फिर से लोगों की जुबान पर आने लगा, मगर इस बार लोग कहते थे, ये आदमी सीधा है। उसने छोटा सा घर लिया, न महल न शान। रात को वो उस घर के फर्श पर बैठकर खाना खाता और सोचता, ज्यादा मिलना हमेशा बेहतर नहीं होता। उसे याद था वो रात जब वो भूखा सोया था। उस याद ने उसे जमीन से जोड़े रखा। जो दौलत को याद के साथ रखे वो गुरूर से महफूज रहता है। जो गिरकर भी अपना ईमान न छोड़े, असल जीत उसी की होती है। वक्त ने अफसर शाह को फिर से उठाया। कारोबार फैल चुका था, नाम दूर तक पहुंच गया।
अब उसके पास दौलत भी थी, इज्जत भी। लोग मशवरा पूछते थे, उसकी बात सुनी जाती थी, मगर वो बदल चुका था। अब जब वो बोलता तो आवाज धीमी होती, अब जब वो फैसला करता तो पहले सोचता। उसने कभी पुराना तख्त वापस मांगने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अब उसे पता था असल बादशाही क्या होती है। उसने अपनी कमाई से गुजरे हुए शहर में अनाज बांटना शुरू किया, न नाम के लिए न शोहरत के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भूख जानता था। एक दिन किसी ने पूछा, तुम फिर से अमीर हो, तख्त क्यों नहीं मांगते? अफसर शाह मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मैं पहले बादशाह था, अब इंसान हूं। ये लफ्ज सदियों तक याद रहने वाले थे। उस रात वो सजदे में गिरा, आंखों से आंसू बहते रहे, मगर इस दफा ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये आंसू शुक्र के थे। सुबह हुई, सूरज निकला, अफसर शाह ने काम शुरू किया, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले करता था, सादा, साफ, खामोश। लोग आज भी उसकी कहानी सुनाते हैं कि कैसे गुरूर ने बादशाह गिराया और कैसे सब्र ने इंसान बना दिया। जिंदगी जब सब कुछ छीन लेती है तो हमेशा सजा देने के लिए नहीं, कभी-कभी इंसान बनाने के लिए। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।